हम जेरेमिया पढ़ेंगे। जेरेमिया 19, 20, 21, 22 चैप्टर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से। हिंदी में पढ़ेंगे BSR बाइबल में से। जेरेमिया 19 चैप्टर, 20 चैप्टर, 21 चैप्टर, 22 चैप्टर। जब हम इंग्लिश में पढ़ के हो जाएगा तो हम हिंदी में BSI बाइबल में उन्हीं अध्यायों को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। मुश्किल है खुदा परमेश्वर कि हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से कुछ भी इन वचनों का भेद को सही तरह से पहचान पाए। इम्पॉसिबल है खुदा, असंभव है। इसको अनलॉक कर खुदा। ये ट्रेशर्स है, ये धन है हमारे लिए खुदा। हमारे जीवन में उंडेल दे, आज हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान दे पवित्र आत्मा। इन वचनों को हमारे अंदर ठहरने का जगह बना और ये वचन हमारे जीवनों को बदलते जाए और परिपूर्ण जीवन की ओर हमें बढ़ाते जाए। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते, फिट एंड फिक्स करने के लिए, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आने के लिए। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे चैप्टर 19। Under the type of breaking a potter's vessel is foreshadowed the desolation of the Jews. Thus saith the Lord, Go and get a potter's earthen bottle, and take off the ancients of the people and of the ancients of the priests, and go forth unto the valley of the son of Hinnom, which is by the entry of the east gate, and proclaim there the words that I shall tell thee, and say, Hear ye the word of the Lord, O kings of Judah and inhabitants of Jerusalem. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring evil upon this place, which whosoever heareth his ears shall tingle, because they have forsaken me and have estranged this place, and have burned incense in it unto other gods, whom neither they nor their fathers have known, nor the kings of Judah, and have filled this place with the blood of innocents. They have built also the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that this place shall no more be called Topheth, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. And I will make void the counsel of Judah and Jerusalem in this place, and I will cause them to fall by the sword before their enemies, and by the hands of them that seek their lives, and their carcasses will I give to be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth. And I will make this city desolate, and hissing, every one that passeth thereby shall be astonished, and his because of all the plagues thereof. And I will cause them to eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters, and they shall eat every one the flesh of his friend in the siege and straitness wherewith their enemies and they that seek their lives shall straiten them. Then shalt thou break the bottle in the sight of the men that go with thee, and shalt say unto them, Thus saith the Lord of hosts, Even so will I break this people and this city, as one breaketh a potter's vessel that cannot be made whole again. And they shall bury them in Topheth till there be no place to bury. Thus will I do unto this place, saith the Lord, and to the inhabitants thereof, and even make this city as Topheth.
and the houses of Jerusalem and the houses of the kings of Judah shall be defiled as the place of Tophet, because of all the houses upon whose roofs they have burned incense unto all the host of heaven, and have poured out drink offerings unto other gods. Then came Jeremiah from Tophet, whither the Lord had sent him to prophesy, and he stood in the court of the Lord's house, and said to all the people, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon this city, and upon all her towns, all the evil that I have pronounced against it, because they have hardened their necks, that they might not hear my words. Chapter 20. Pashur, smiting Jeremiah, receives a new name and a fearful doom. Jeremiah complains of contempt, treachery, and of his birth. First verse पढ़ेंगे. Now Pashur, the son of Immer the priest, who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Then Pashur smote Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. And it came to pass on the morrow that Pashur brought forth Jeremiah out of the stocks. Then said Jeremiah unto him, The Lord hath not called thy name Pashur, but Magor-Missabib. For thus saith the Lord, Behold, I will make thee a terror to thyself and to all thy friends, and they shall fall by the sword of their enemies. And thine eyes shall behold it. And I will give all Judah into the hand of the king of Babylon, and he shall carry them captive into Babylon, and shall slay them with the sword. Moreover, I will deliver all the strength of this city, and all the labors thereof, and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of Judah will I give into the hand of their enemies, which shall spoil them, and take them, and carry them to Babylon. And thou, Pashur, and all that dwell in thine house shall go into captivity, and thou shalt come to Babylon, and there thou shalt die, and shalt be buried there, thou and all thy friends to whom thou hast prophesied lies. O Lord, thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily, even every one mocketh me. For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. For I heard the defaming of many, fear on every side. Report, say they, and we will report it. All my familiars watched for my halting, saying, Peradventure he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. But the Lord is with me as a mighty terrible one. Therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. But, O Lord of hosts, that triest the righteous, and seest the reins,
and the heart. Let me see thy vengeance on them. For unto thee have I opened my cause. Sing unto the Lord praise, ye the Lord, for he had delivered the soul of the poor from the hand of evildoers. इस वचन को दीवार के ऊपर लगा के रखिए ताकि आप इस वचन को बारंबार बोल सके और हमेशा परमेश्वर इस वचन को सुनकर स्वर्गदूत आपकी ओर अट्रैक्ट होते रहे जो आपको छुड़ाने के लिए रखते हैं। 14th वर्स से आगे, Cursed be the day wherein I was born. Let not the day wherein my mother bare me be blessed. Cursed be the man who brought tidings to my father, saying, A man child's born unto thee, making him very glad. And let that man be as the cities which the Lord overthrew and repented not. And let him hear the cry in the morning and the shouting at noontide. Because he slew me not from the womb, or that my mother might have been my grave, and her womb to be always great with me. Wherefore came I forth out of the womb to see labor and sorrow, that my days should be consumed with shame. Chapter 21. Zedekiah inquires the event of Nebuchadnezzar's war, a hard siege foretold. First verse से पढ़ेंगे. The word which came unto Jeremiah from the Lord when King Zedekiah sent unto him Pashur the son of Melchiah and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, saying, Inquire, I pray thee, of the Lord for us, for Nebuchadnezzar king of Babylon maketh war against us. If so be that the Lord will deal with us according to all his wondrous works, that he may go up from us. Then said Jeremiah unto them, Thus shall ye say to Zedekiah, Thus saith the Lord God of Israel, Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, wherewith ye fight against the king of Babylon and against the Chaldeans, which besiege you without the walls, and I will assemble them into the midst of this city. And I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger and in fury and in great wrath. And I will smite the inhabitants of this city, both man and beast. They shall die of a great pestilence. And afterward said the Lord, I will deliver Zedekiah, king of Judah, and his servants and the people, and such as are left in this city, from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life, and he shall smite them with the edge of the sword. He shall not spare them, neither have pity nor have mercy. And unto this people thou shalt say, Thus saith the Lord, Behold, I set before you the way of life and the way of death. He that abideth in this city shall die by the sword, and by the famine, and by the pestilence. But he that goeth out and falleth to the Chaldeans that besiege you, he shall live, and his life shall be unto him for a prey. For I have set my face against this city for evil, and not for good, saith the Lord. It shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire. And touching the house of the king of Judah, say,
Hear ye the word of the Lord, O house of David. Thus saith the Lord, execute judgment in the morning, and deliver him that is spoiled out of the hand of the oppressor, lest my fury go out like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings. Behold, I am against thee, O inhabitant of the valley and rock of the plain, saith the Lord, which say, who shall come down against us, or who shall enter into our habitations? But I will punish you according to the fruit of your doings, saith the Lord. And I will kindle a fire in the forest thereof, and it shall devour all things round about it. ये जो वचन है ना, मैंने तो 12 वचन को मार्किंग करके रखा है, लेकिन मैं उसके अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ उसके बारे में, लेकिन मुझे ये वचन बताना है आपको। हाँ, जो दुष्ट रहता है वो हमेशा अपनी ताकत में भरोसा रख के आराम से दुष्टता करता है, क्योंकि उसकी शहरपना होती है। हाँ, उसके दायरे होते हैं और वो जानता है उसके दायरे का वो बाप है। ओके, तो इस प्रकार से वो अपनी ताकत को जानते हुए, अपने लिमिट को जानते हुए वो दुष्टता की तीव्रता को बनाए रखता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके बारे में जानकारी रखना है कि जब दुष्टता प्रबल रहता है, वो पीछे हटना नहीं चाहता है, तो उसका दायरा उसको टीचिंग्स दे रहा है कि कुछ भी कर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब तो सुरक्षित है। उसका दायरा, उसका कॉन्फिडेंस रहता है। ओके, तो आपने क्या करना है, ये 14th वचन लेना है और परमेश्वर से मांगना है कि अब तूने अपनी ओर से अपने तलवार को निकालना है, अपनी आग को निकालना है, और जो उसका दायरा जंगल की तरफ फैला हुआ है उसको नाश कर देना है। उसका फैलाव खत्म हो जाएगा ना, तो वो इंसान देखने लायक बन जाएगा। आप देख सकते हैं उसको, उसके बाद की अवस्था उसकी क्या रहती है। ओके, तो उसकी घमंड इतनी टूट जाती है कि उसको बचने के लिए आप कहेंगे अगर ये पूर्व दिशा नहीं वो वाली है, तो भी वो मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर की ताकत ख़त्म हो गई है। वो समझने लगता है कि अब तो मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस सरेंडर करना ही मेरे लिए रास्ता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये लास्ट वाला वचन ध्यान रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है। जब दुष्टता प्रबल होती है आपके ऊपर, रुकने का नाम नहीं लेती है, अकेले में बैठ जाओ और ये वचन से परमेश्वर से मांगो। ये वचन से परमेश्वर उनके शहरपना का सत्यानाश करेगा और उस इंसान की ताकत का कॉन्फिडेंस तोड़ देगा वो। आमीन। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 22। चैप्टर 22 हम पढ़ेंगे exhortation to repentance, the judgment of Shallum, of Jehoiakim and of Coniah. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Thus saith the Lord, go down to the house of the king of Judah and speak there this word and say, hear the word of the Lord, O king of Judah, that sittest upon the throne of David, thou and thy servants and thy people that enter in by these gates. Thus saith the Lord, execute ye judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor, and do no wrong. Do no violence to the stranger, the fatherless, nor the widow, nor shed innocent blood in this place. For if ye do this thing indeed, then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, riding in chariots and on horses, he and his servants and his people. But if ye will not hear these words, I swear by myself, saith the Lord, that this house shall become a desolation. For thus saith the Lord unto the king's house of Judah, thou art Gilead unto me, and the head of Lebanon, yet surely I will make thee a wilderness and cities which are not inhabited.
And I will prepare destroyers against thee, every one with his weapons, and they shall cut down thy choice cedars and cast them into the fire. And many nations shall pass by this city, and they shall say every man to his neighbor, Wherefore hath the Lord done thus unto this great city? Then they shall answer, Because they have forsaken the covenant of the Lord their God, and worshipped other gods, and served them. Weep ye not for the dead, neither bemoan him, but weep sore for him that goeth away, for he shall return no more, nor see his native country. देखिए, मरे हुओं के लिए दुख मत करो, उनके लिए आप पश्चाताप करो मत, दुख मत करो, रो मत, परंतु बहुत बुरी तरह से आप रो लो उनके लिए जो अभी इस समय पृथ्वी पर चल रहे हैं और इस दिशा में जा रहे हैं जो नाश होने के लिए है, जहाँ से दोबारा लौटकर वो कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका समय ख़त्म होकर चले गए लोग हैं उनको छोड़ दो, आप उनकी चर्चाओं को ज़्यादा दिलो जान पर लेके बैठिए मत। ओके, आप किसकी चर्चाओं के विषय में अब चिंतित रहना है? आप उनके विषय में जो अभी तक प्रभु यीशु में आए हुए नहीं हैं। समझ में आया? आपकी चिंताओं का विषय अब वो लोग हो जाना चाहिए जो अभी तक प्रभु यीशु में उद्धार पाए नहीं है, और जो लोग विश्वास को छोड़कर चले गए हैं, जो विश्वास के बाहर निकल गए हैं, जो अन्य भक्ति में जुड़ गए हैं, जो अपने अंदर से परमेश्वर को त्याग दिए हैं। ठीक है, 12 वर्ष से आगे, बट ही शैल डाई इन द प्लेस whither they have led him captive, and shall see this land no more. Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and giveth him not for his work, that saith, I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows, and it is sealed with cedar and painted with vermilion. Shalt thou reign because thou closest thyself in cedar? Did not thy father eat and drink and do judgment and justice, and then it was well with him? He judged the cause of the poor and needy, then it was well with him. And was not this to know me? It was well with him. Was not this to know me? Said the Lord. But thine eyes and thine heart are not but for thy covetousness, and for to shed innocent blood, and for oppression, and for violence to do it. Therefore thus saith the Lord concerning Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, they shall not lament for him, saying, Ah, my mother, my brother, or Ah, sister. They shall not lament for him, saying, Ah, Lord, or Ah, his glory. He shall be buried with the burial of an ass, drawn and cast forth beyond the gates of the Jerusalem. Go up to Lebanon and cry, and lift up thy voice in Bashan, and cry from the passages, for all thy lovers are destroyed. I spake unto thee in thy prosperity, but thou sayest, I will not hear. This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyest not my voice. The wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity. Surely then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness. O inhabitant of Lebanon, that makest thy nest in the cedars, how gracious shalt thou be when pangs come upon thee, the pain as of a woman in travail. As I live, saith the Lord, though Coniah, the son of Jehoiakim, king of Judah,
wear the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence. And I will give thee into the hand of them that seek thy life, and into the hand of them whose face thou fearest, even into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans. And I will cast thee out, and thy mother that bare thee, into another country, where ye were not born, and there shall ye die. But to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return. Is this man Conia a despised broken idol? Is he a vessel wherein is no pleasure? Wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into a land which they know not? O earth, O earth, 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 hear the word of the Lord. Thus saith the Lord, write ye this man childless, a man that shall not prosper in his days, for no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling any more in Judah. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर बोलने के लिए बोला है, तो आपने इसके विपरीत बोलना है. अर्थ अर्थ अर्थ, लिसन टू मी, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हाँ, आपने क्या बोलना है? राइट सक्सेस ऑन द पीपल लिविंग हियर. ओके, आपने बोलना है राइट प्रॉस्पेरिटी, लेट देम हैव प्रॉस्पेरिटी इन देयर डेज ऑन दिस लैंड. लेट द माइंड्स ऑफ द पीपल come into Christ and let them surrender to Christ. इस प्रकार से आपको पृथ्वी को आज्ञा लगाना है प्रभु यीशु के नाम में. समझ में आया? क्योंकि ज़मीन भी जिम्मेदार रहती है कुछ हिस्सों में. बुराइयों के लिए ज़मीन सपोर्ट करती है. ओके, तो आपने उसकी बुराइयों की ताकत को भी निपटना पड़ता है, हवा की ताकत को भी निपटना पड़ता है, आकाश के ताकतों को भी निपटना पड़ता है. जो जंगल पेड़ पौधे होते हैं, जो इस ज़मीन पर उगे हुए घास, जंगल या खाली सुनसान जगह, पहाड़, नदियाँ, जो नाले, पानी के कोठार, जो भंडार, ये सब कुछ को निपटना पड़ता है अगर आप आपके शहर को परमेश्वर में देखना चाहते हैं तो. ठीक है, पशु पक्षी, ये सब जानवर, जीव जंतु, सब कुछ को निपटना पड़ता है आपको आत्मिक जगत में से प्रार्थना करते हुए. क्योंकि अगर आप इनको छोड़ देंगे और सिर्फ प्रभु 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 करते रहेंगे तो ये तो जरिया है दुष्ट आत्माओं के कामों को आने जाने के. ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो टूटना ज़रूरी होता है. तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं वॉरफेयर प्रेयर्स के. अब फिर आप कमेंट में लिखते हैं ना कि मैं जानना चाहते हैं हम वॉरफेयर क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से हमने वॉरफेयर प्रेयर करना है. तो मुझे हंसी आ जाती है. आप जो मैं बोल रही हूँ उसके अंदर कितना कुछ मैंने आपको दे दिया है. ओके, ये सारा टीचिंग्स के बाद में फिर आप ये कमेंट करेंगे कि मुझे सीखना है, तो मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं है. ओके, तो आपने क्या करना है? ये टीचिंग्स को अच्छे भले से समझना है, और फिर जब हम वॉरफेयर प्रेयर में उतरते हैं तो आपको भले तरह से समझना है कि हम मनुष्य के विरोध नहीं, दुष्ट आत्माओं के विरोध उठे हैं. हाँ, तो आपने भले तरह से समझना है कि अब छुटकारा तो है ही है. ठीक है, क्योंकि बंधन टूटते हैं तो छुटकारा तो है ही है, और कहाँ जाएगा फिर छुटकारा, है ना. तो इस प्रकार से वॉरफेयर प्रेयर का लाभ उठाना है हमारे लिए भी, हमारे घरों के लिए, हमारे सारे हिस्सों में, जीवनों के हर हिस्सों में हमने वॉरफेयर प्रेयर्स को यूज़ करना है. प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 19 अध्याय, 20 अध्याय, 21 अध्याय, 22 अध्याय हम पढ़ेंगे. पहले वचन से. टूटी सुराही का उदाहरण. यहोवा ने यूँ कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों के साथ लेकर हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर.
तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा योग कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है। और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया, इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत या हिन्नोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवाकर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखकर डरेंगे। जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा। यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, सब गांवों समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है। यिर्मयाह और पशहूर याजक के बीच विवाद। 20 वचन से आगे। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। सवेरे जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मगोर मिस्साबीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे दिखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। और हे पशहूर,
तो उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बेबीलोन में जाएगा और वहाँ मरेगा, और वही तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। यिर्मयाह की परमेश्वर से शिकायत। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुँह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जो होते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। ओके, 11 वचन से आगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तो उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। ये वाला वचन 11 वचन से लेकर 13 वचन तक आपने दीवार के ऊपर आपके पर्सनल यूज़ के लिए लगातार आपके मनन में ये आपने बोलते रहना है। 11 वचन से 13 वचन। 14 वचन से आगे। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे माता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय हो ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणी 21 अध्याय पहले वचन से। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र पशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूँ कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनसे तुम बेबीलोन के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौट आकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूँगा, और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे,
उसके बाद यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार और महंगे से बचे रहेंगे, उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा। इस प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। यहूदा के राजवंश पर दंड। 11 वचन से आगे। यहूदा के राजकुल के लोगों से कहे, यहोवा का वचन सुनो, हे दाऊद के घराने। यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा। हे तराई में रहने वाली और समथर देश की चट्टान, तुम जो कहते हो हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में प्रवेश कर सकेगा। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यहूदा के राजवंश के लिए यिर्मयाह का संदेश। 22 वचन से आगे। 22 अध्याय पहले वचन से आगे। यहोवा ने यूं कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कहे, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। यहोआहाज शल्लूम के विषय यिर्मयाह का संदेश। 10 वचन से आगे। मरे हुओं के लिए मत रोवो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रोवो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यूं कहता है, वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा।
और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा। यहोयाकीम के विषय यिर्मयाह का संदेश। 13 वचन से आगे। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा, वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी। वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। यरूशलेम के विषय यिर्मयाह का संदेश। 20 वचन से आगे। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला। फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा, मैं तेरी ना सुनूंगा। युवावस्था से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोयाकीम को परमेश्वर का दंड। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्या मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में, जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने न पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सारे वचनों के लिए। धन्यवाद नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैंने इन सारे वचनों को इंग्लिश में पढ़ते समय बता दिया था बहुत कुछ। तो आप जब इंग्लिश में पढ़ने के लिए शुरू करते हैं ना, तभी आप हिंदी बाइबल को भी खोलकर शुरू कीजिए इंग्लिश में सुनना। तब आप क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बात जो इंग्लिश में बताया वो भी आपको मिल जाएगा, जो हिंदी में बताया वो भी आपको मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। रहे। थैंक यू जीसस। हमें पिता तूने अपने आत्मा से परमेश्वर
जो भले काम सिखाए, तेरे वचनों को सीखने का जो रास्ता सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलो मिनिस्ट्रीज के लिए पिता, जो हमें रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज दे देकर हमें आगे बढ़ा रहे, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते। इनके फैलाव जो वचनों की है, हमारे बुद्धि में बैठकर परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को बदल रहे हैं। उनके प्रार्थना वीर हमारे लिए प्रार्थना करके हमें इन वचनों में स्थिर किए जा रहे हैं, मजबूत, और हमें जड़ पकड़ने के लिए प्रार्थना करके हमें सहायता कर रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सताव के बीच में भी परमेश्वर हियाव ना छोड़ने का सामर्थ्य देकर पिता हमारे विश्वास की रखवाली कर रहे, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर, हम तक ऐसे लंबे दूर रास्ते से भी लोग पिता परमेश्वर हमारी सुधि लेकर हमें बचा कर रख रहे विश्वास में, इसके लिए तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। तेरा आत्मा बड़े मजबूती से इस दौर में से हमें लेकर जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। नासरी यीशु के नाम में ये वचन जो हमने पढ़े हैं, इसके भेद हमें खोलते रहना पिता पवित्र आत्मा, और हमें फिट एंड फिक्स करके ईश्वरीय रचना में हमें बनाते रहना। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 7 चैप्टर 45 वर्स से 53 वर्स, 2 किंग्स 15 चैप्टर 16 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 45 से 53 वचन तक, और दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय 16 अध्याय। जब हम पढ़ेंगे अपने अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे, और इन वचनों के भेद पवित्र आत्मा को हम पर प्रकट करने का मौका देंगे। और ऐसा होते हुए जब जाएंगे तो परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता हुआ, हमें सुधार लाता हुआ, हमारे द्वारा परमेश्वर के भले कामों को प्रकट करता हुआ लेकर जाएगा। और हम देखेंगे 2 साल के अंत में परमेश्वर के आत्मा के कारण ही हम कुछ ऐसे उन्नति के स्तर चढ़ चुके होंगे जो कभी भी हम नहीं प्राप्त कर पा सकते थे। ऐसे अकेले में बैठकर पढ़ने की वजह से हमने कुछ प्राप्त कर लिया, ये हमको मालूम कराएगा पवित्र आत्मा। ओके, हमने इसका निश्चित लाभ उठाना है। परमेश्वर का आत्मा हमको जो दे रहा है अकेले में बैठकर पढ़ने का अवसर, उसका हमने निश्चित लाभ उठाना है। उसके सिखाए जाने वाले रास्तों का हमने लाभ उठाना है। इस अनुग्रह के आत्मा के कारण परमेश्वर ने हमको कुछ योजना रखा है जिसमें वो हमको प्राप्त करना चाहता है, उस योजना में हमको चलाना चाहता है। उसके लिए हमें तैयार हो जाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए, हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाने के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।